create token. Brave का भी पैसा बना रहा है, वो भी मतलब पैसा अर्निंग कर रहा है, but not to that by selling your data. What they are doing, they are collecting that footprints and then trying to block the footprints, and then they are changing this, you can say, this trackers and ads in terms of some tokens. मैं आपको इस पे आगे आऊंगा कि ये कैसे होता है, क्या इकोसिस्टम है. I will explain each and everything. But I will say Brave is different in compared to existing browsers. Why? Because the technology behind the Brave browser is different. Brave is based on the Ethereum blockchain concept. I will explain each and every aspects कि ये कैसे होता है, कैसे डेटा पूरा स्टोर करते हैं, ये हमने पूरा प्रैक्टिकल लेके रखा है. ओके, सो गॉट इट. So for your question, I will. Just a thought of it. Just a Yeah, thought of it. But yeah, every good company or कोई भी एक company अगर top पे होती है, they are not very much honest. Would be yeah. doing something. Sure. होता है. To be देखिए, अब ये यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो हम ब्लॉकचेन ला रहे हैं. ब्लॉकचेन के पीछे आपसे मैंने कहा ना कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि यहाँ पर किसी की भी मोनोपोली ना चले. उनका मेन गोल क्या है ब्लॉकचेन का, कि जो ये मोनोपोली हो रही है, जो ये एक बड़ी कंपनी बनते जा रही है, जो टॉप टेंस में आते जा रहे हैं, और बहुत सारा इकोसिस्टम जो है बदल रहा है, और वी कैन से मोनोपोलीज कंपनी की बनते जा रही है, तो उसी को हटाने के लिए ब्लॉकचेन लाया जा रहा है, सो डैट कि किसी की भी मोनोपोली ना क्रिएट हो, कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम में आके अपने आप को रूल ना करे. So that's why blockchain is trying to solve all these issues. Okay, so I will cover, don't worry, I will also cover about this thing also, that ये कैसा होता है, क्यों होता है. But before that, just check this one, please read it, please read this one. If you are not paying for it, that means you are the product. So if you are using any service, or if you are using, we can say, any product, and if you are not paying for it, so that means, if you are not paying for it, that means you are the product. So if you are using any service, or if you are using, we can say, any product, and if you are not paying for it, so that means that you are the product. वो आपसे ही पैसा बना रहा है. Now, do you remember this news? Certain news from, I think, 2020, yeah, after COVID, na, that certain apps were banned. So many apps were banned by Indian government. Why? Because not only you can say your browsing, but also your applications. जब भी आप कोई अगर ऐप यूज करते हो ना, तो वहां भी बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, and they are also tracking your activities, they are also selling your data. So that's why government of India, what they have done, they have banned multiple applications. उन्होंने बैन लगा दिया टिकटॉक पे और कई सारी एप्स पे. Why? Because the same applications and all these applications, what they are doing, they are selling your data to China. वो आपका रिकॉर्ड बैकग्राउंड में एक्सेस करते हैं और आगे चाइना को दे देते हैं. So that's why what government has done, they have banned all these applications, just to, we can say, to maintain the privacy and the nation security. Clear? Why? Because whenever you access the smartphones, you can see there what they need. A smartphone need access to contact, location, that SMS, photo, camera, Wi-Fi connections, and multiple things. जब भी आप कोई ऐप अगर कर रहे हैं यूज, तो बैकग्राउंड में आपका बहुत रिकॉर्ड एक्सेस कर रही है. Why? Because they want it for data. Same thing, they want to know about your locations, they want to know about your contacts, they want to know about your SMS, your we can say, photographs, your media files, your camera, all these things. So guys, nothing is free in this, we can say, existing technology. Nothing is free, and all these applications, they are accessing your personal data, and then they are, we can say, misusing your data. Now just check this one, what your mobile device knows about you. Your mobile device knows about your card number, your phone calls, your name and addresses, your locations, your current locations, your bank account information, plus your passwords. All your personal life is, you can say, is being recorded. जितना आप अपने को अच्छे से नहीं जानते हो, उससे ज्यादा ये आपको जानते हैं. Trust me. Trust me. Now, let me ask you one question. Anybody, any idea about this, The Great Hack? Anybody, have you seen this movie? You can say this on this Netflix OTT, The Great Hack. Just go and watch. It's my request. If you are having the subscription of Netflix now, just go and watch this one, The Great Hack. Basically, now this was all about the same thing which I'm discussing with you. That how these companies are making money, how they are selling your data, and how they are selling your privacy. This particular, we can say, web series is all about the same thing which I'm telling you. Because
I will, because this is the same thing ना. Now the coming on the dark side, ये आपसे रिकॉर्ड तो ले रही है, बट इसी रिकॉर्ड को ये बाहर सेल कर रही है, ये बाहर रिकॉर्ड बिक रहा है, और वो जो रिकॉर्ड बिकता है ना, और जब वो डेटा सेल कर रहे हैं ना, तो वो रिकॉर्ड किसको सेल कर रहे हैं उनको नहीं पता होता है. इसीलिए इतना फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, आपको फोन कॉल आते हैं, आपको ये एड्स आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज आपका डेटा बाहर बिक रहा है. दे आर सेलिंग योर डेटा, दे आर सेलिंग योर प्राइवेसी completely. Now let me give you some examples. So guys, please open one website. The name of website is haveibeenpawned.com. I think you might know about this one, huh? So please open this website. Let me give you a live example. Guys, please open this website. Okay. So I think you all are getting now. Is my pace okay? Yes, So sir. It is. It is. so Yes, are you sir. all getting? Yeah. So are you all getting all these things? Yes, sir. Yeah. So now let me go for practical. Let me give you one practical also. So can anyone, can you share your email ID, your Gmail ID? Can anyone? Can you please share your Gmail ID with me? Okay, okay. Let me go for the first one. Just copy your ID and then just paste on this one. Okay. What you can do? Just type your Gmail ID in this particular box. Done. Now search for it. Click on this pawn. If you are using Mohit, if your email ID na, Mohit, your email Yes, ID sir. is compromised. Your email ID is compromised by Domino's Pizza. You can see there. Okay, sir. आपने Domino's Pizza का ऐप यूज किया होगा शायद, या आपने ऑर्डर प्लेस किया Ye- होगा. Yes, हाँ, sir. आप देखिए Yeah. उसने क्या किया है. उसने आपका रिकॉर्ड लिया. हम बात करें डोमिनोज पिज्जा की. उसने आपका हाँ जी, sir. रिकॉर्ड लिया और उसने आपका रिकॉर्ड लेके रखा. लेकिन क्या हुआ, उसके उस सर्वर पे जब अटैक हुआ, हैक हुआ, तो उस रिकॉर्ड में आपका ईमेल एड्रेस, योर नेम, योर फोन नंबर, योर फिजिकल एड्रेस प्लस योर परचेसेस, all these things were compromised. Can you see? Now all Mhm. your email addresses, your phone number, your, you can say, purchase, and all these things are available in market, and they're open for, we can say, any cyber criminal. So what they can do, they will try and they will, you can say, they will start posting you multiple ads on your, you can say, box. So in this manner Yes, sir. na, all these companies, what they do, they collect your data. वो आपका रिकॉर्ड तो ले रही हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं पा रही हैं. एंड देन यू कैन से, जब वो रिकॉर्ड संभाल नहीं पाती है, मैनेज नहीं कर पाती है, तो रिकॉर्ड जो है ये ब्रीच होता है और मार्केट में आ जाता है, और फिर जो होते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसका मेन मिसयूज करते हैं. नाउ लेट मी गो फॉर डिफरेंट ईमेल आईडी. लेट मी गो फॉर डिफरेंट ईमेल आईडी. ओके, दिस वन. या, सो यू कैन सी देयर, यू कैन सी देयर इन केस ऑफ दिस आईडी. हाँ, महाराणा प्रताप जी, आप देखिए आपके आईडी में क्या है. यू कैन सी योर आईडी इज कॉम्प्रोमाइज ऑन, यू कैन से, दैट multiple data breach. In fact, your passwords are also compromised. Can you see this one? Although यहाँ पर Yes. नाम नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से ब्रीच हुआ है, लेकिन आपका पासवर्ड भी ब्रीच हुआ है. Means what? Someone can also open your email ID with passwords. आपका email address, password, ये इस वाले ब्रीच में आया है. सेकेंड, आपका जो ब्रीच में आया है वो है सिटी 0 डे में, जिसमें वंस अगेन आपका डेटा ब्रीच हुआ है. एंड ऑल्सो इन डोमिनोज पिज्जा. कैन यू सी सेम डेटा? आपने भी शायद यूज किया होगा. नाउ द मेन क्वेश्चंस कम, हाउ टू स्टॉप दिस. सर, इसीलिए हम लोग अब आगे ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर मूविंग इन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, बिकॉज सो मेनी इश्यूज आर देयर इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. या यू मे गो फॉर इट, यू मे गो फॉर इट, यू मे गो फॉर इट. हाँ सर्वेश, बहुत सारे आईडीज हैं, अगर मैं करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग काफी फिर पीछे हो जाएंगे. ओके, यू मे सर्च फॉर इट. इफ यू आर गेटिंग गुड न्यूज ना, अगर वहां लिखा रहा है गुड न्यूज, नो डेटा ब्रीच, देन योर आईडी इज सेफ, देन कांग्रेचुलेशंस, योर आईडी इज सेफ. बट अगर ऐसा लिखा रहा है ओ नो, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका आईडी ब्रीच हुआ है. ओके, सो व्हाई ऑल दिस ब्रीच आर देयर? बिकॉज आप लोग जीमेल यूज कर रहे हैं और आप लोग वो एप्स का यूज कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा ना, वो सभी आपका रिकॉर्ड सेल कर रहे हैं. सो नाउ, बट नाउ कमिंग ऑन द डिफेंस पार्ट. अब इससे कैसे बचा जाए? So first thing is what? Yeah, very good. So you are getting good. Means your ID is not compromised. Very good. So now, how to, can say, avoid such, can say, scams and fraud? So can you see this one? Notify me. So click on this. Notify me. Yeah, please, please, please ask.
Sir, I have logged in also in a Zomato and Swiggy app. Why it did not show in this? Yeah, why? Why? Because it might be possible that Zomato or Swiggy or any application, they are not breach. मतलब उन कंपनीज पे अभी तक अटैक नहीं हुआ है, कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है, तो इसलिए उनका डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। ओके, सो Okay. बहुत सारी जगह आपने बहुत सारी एप्स यूज की हैं, बट आपका रिकॉर्ड वहां से ब्रीच क्यों नहीं हुआ? ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारा कैसे ब्रीच हुआ है, मतलब हमारा रिकॉर्ड मार्केट में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और आप जस्ट वेट करो 5 मिनट, मैं अभी आपको आपका रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा, डोंट वरी कि आपका डेटा भी आपको दिखा दूंगा मैं कि वो सब कैसे मार्केट में आया है। क्लियर? तो अभी क्या साइकोलॉजिकल देखिए कि हम जब भी वो एप्स यूज कर रहे हैं, हमारा डेटा मार्केट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनियां हमसे रिकॉर्ड ले रही हैं, वो कंपनियां प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। इसलिए हम जब वो कंपनीज पर अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं हम पे भी अटैक हो जाता है, हम भी ब्रीच हो जाते तो हैं। तो ओके, मतलब अगले आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे जी। हैं अगले हम डोमिनोज में जाए तो हम डायरेक्ट काउंटर से जाके ले ऑनलाइन ना मंगवाएं? नो, देखिए वंस अगेन सेम थिंग कि आप सर इसका डिफेंस कैसे करेंगे? तो जब तक आपको डिफेंस नहीं करना है, जब तक डोमिनोज पिज्जा अपना टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेगा, आपको नहीं कुछ नहीं करना है। जब तक डोमिनोज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, ये चीजें ऐसी होती रहेंगी। जब तक जितनी भी जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जब तक ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स नहीं आएंगी, जब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। कल आपने किसी ने अगर न्यूज पढ़ा हो ना अबाउट उबर के बारे में, कल उबर का रिकॉर्ड ब्रीच हुआ है। कल ही के न्यूज है कि उबर का कल डेटा ब्रीच हुआ है, यानी कि उबर जो है उस पर अटैक हुआ और वहां से रिकॉर्ड लीक हुआ है। तो जिसने भी अगर राइड अगर बुक की होगी ना उबर पे, वो सब रिकॉर्ड मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें करना है किसको? उबर को, कि उनको ब्लॉकचेन पे आना है। कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कि जब तक ये यस कंपनियां स्विच नहीं करेंगी टेक्नोलॉजी, जब तक ये जंप नहीं करेंगी नई टेक्नोलॉजीज में, जब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। क्लियर? सो नाउ कमिंग ऑन डिफेंस पार्ट। अब अगर हमको नोटिफाई चाहिए, तो कैन यू सी व्हाट आई हैव डन? जस्ट क्लिक ऑन दिस, नोटिफाई मी। जस्ट क्लिक ऑन दिस, notify me. Just click on this one, notify me. And then click on this one, I am not a robot. Clear? आप उस पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन दिस, नोटिफाई मी। तो क्या होगा? अगर आज के बाद कभी आपका रिकॉर्ड अगर ब्रीच होता है, तो ये जो वेबसाइट है ये आपको बता देगी ईमेल पे कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है और आपका रिकॉर्ड मार्केट में जो है आ गया है, तो प्लीज चेंज योर पासवर्ड्स। प्लीज चेंज योर पासवर्ड्स। So from today onwards, this website, it will notify you regarding that, change your password. Might be possible. सर मेरा कहीं Sir, ब्रीच नहीं will हुआ, also वेरी गुड। please notify me. हाँ, सो अगर आज के बाद ये जो ईमेल आईडी है ना, महाराणा प्रताप 346@gmail.com, अगर आज के बाद अगर ये डेटा अगर मार्केट में बिकने के लिए आता है, ऐसे फोरम्स पे अगर सेल होने के लिए आता है, तो ये जो वेबसाइट है ये आपको नोटिफाई कर देगी कि आपका डेटा Yes, जो sir. है Click on the मार्केट में सेल notify होने me. के लिए आ गया है, आप आपका पासवर्ड चेंज कर लीजिए। क्लियर? सो इन दिस मैनर ना, यू कैन ऑल्सो यूज एंड सर्च फॉर इट। गॉट इट? एनी क्वेश्चन गाइस? देखो अभी आप लोग को है ना समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? प्लीज डोंट प्लीज डोंट ट्रीट दिस एज अ लेक्चर। हाँ, ये हम लेक्चर नहीं कर रहे हैं, हम एक चाह रहे हैं एक बिल्ड करना एक हेल्थ इकोसिस्टम। सो प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछिए बेटा, आप सर ये क्वेश्चन ही पूछिए नोटिफाई वाला मुझसे। बटन कहाँ से आया था? देखिए आप देख रहे हैं होम के पास दिखाई दे रहा है, कैन यू सी? होम के पास अच्छा, ऊपर जो आया। होम है ना, उसके पास देखिए आपको अच्छा दिखाई अच्छा देगा अच्छा। नोटिफाई मी। जस्ट क्लिक ऑन दिस ओके वन। ओके, तो प्लीज डोंट ट्रीट दिस एज अ लेक्चर। ये हम लेक्चर के लिए इसको मत ट्रीट कीजिए आप प्लीज। हाँ, आपको जो भी मन में सवाल है ना, आप प्लीज मुझसे पूछिए, तो ही पता है आप इसको एंजॉय करेंगे इस एंटायर सेशन को, और हम बहुत कुछ सीखेंगे। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बहुत बड़ा मार्केट है ब्लॉकचेन सेगमेंट का। अभी देखा ना आपने एग्जांपल देखा ना कि डोमिनोज पिज्जा Sir, कितनी बड़ी कंपनी है। या प्लीज 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 गो अहेड। actually, I was late joined. So, can you brief me what is this website? ओके, okay, basically actually now what we are actually seeing now, we are trying to cover about the ecosystem behind blockchain, that why we should go for blockchain technology. So many issues are there with existing technology. We can say issues regarding cyber attacks, cyber threat, privacy, and this data breach, and this fake news, hate news. So many things are there.